हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड द नेम इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो वी हैव कन्वर्टेड न्यूट्रिशन टॉपिक. आफ्टर दैट वी हैव कन्वर्टेड रेस्पिरेशन. नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है बच्चों. So from the word transportation itself we understand that this is the transportation of absorbed food, respiratory gases, CO2, O2, waste material, hormones, enzymes and ions throughout the body. So my dear students, inside our body, these substances which I have mentioned just now is getting transported from one place to another place. Okay, so this transportation is done with the help of a circulatory fluid called blood. Okay, so blood flows throughout our body. Blood goes to every tissue, every organ, and along with the bloodstream these substances are getting transferred. Okay बच्चों, तो ब्लड का एक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2, O2, वेस्ट मटेरियल, hormones, enzymes and ions from one part of the body to another part. Right? Now another function of blood is that blood regulates the body temperature as well. If you see, our body temperature is almost same throughout our body. Okay students, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, देखिए हेड हो, हैंड हो, लेग हो, हर जगह ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है. So this same temperature is again because of blood, because the same blood flows to every part of our body. ठीक है बच्चों. So blood helps in transportation and blood helps in temperature control. ठीक है बच्चों. Next, circulatory system. जैसे आपका respiratory system है, like that we have a circulatory system. And you know, circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. ठीक है बच्चों. Now what is heart? You know, heart helps in pumping the blood, because blood flows throughout our body. So heart is a organ which pumps the blood, and blood flows inside a small tube called blood vessels. So blood vessels बच्चों सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हो, blood vessels are tubular structure inside which the blood flows. Okay, now there are three types of blood vessels. One is veins, another is arteries, and third one is blood capillaries. Third is blood. Okay, अब बच्चों ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. तो ब्लड इज a connective tissue. Blood is a type of tissue. 8th-9th क्लास में पढ़े थे आप लोग. Blood is a connective tissue. Blood is red colored fluid, you know that, which circulates in our body. ये सब आपको मालूम है बच्चों. And blood is red. You know why blood is red? Due to the presence of red blood cell. Okay. Now red blood cell is red. Why? Because of the presence of a red pigment named hemoglobin. ठीक है बच्चों. जैसे प्लांट ग्रीन है, क्यों ग्रीन है भाई? Because of the presence of a green pigment named chlorophyll. तो वैसा ही बच्चों ब्लड रेड है because of RBC, red blood cell. And red blood cell red क्यों है? Because of red pigment named hemoglobin. I hope you might be remembering, I told you, no, hemoglobin helps in the transportation of oxygen. Okay, तो hemoglobin क्या करता है बच्चों? It absorbs oxygen and transports oxygen. Okay, now blood consists of, blood के अंदर बच्चों क्या क्या होता है देखिए, RBC होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. ठीक है बच्चों. नाउ ब्लड इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वन मोर कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? इट इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड. ठीक है बच्चों. एक्चुअली ब्लड जो है
Basically, blood is a connective tissue, and you know every connective tissue has got a matrix. So plasma is the matrix of blood and it is fluidic in nature. ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. अब देखिए बच्चों, इसके अंदर पानी है, दिख रहा है पानी आपको, राइट? सो ये पानी को आप बोल सकते हो प्लाज्मा. सो दिस इज प्लाज्मा, दिस इज द मैट्रिक्स इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड. अब बच्चों, ये जो दाल मैं डाल रहा हूं, ये जो दाल है आप इसको बोल सकते हो व्हाइट ब्लड सेल. दिख रहा है बच्चों? सो दिस इज व्हाइट ब्लड सेल. दिस इज इडली का दाल, उड़द दाल. ओके, तो ये मैंने बना दिया व्हाइट ब्लड सेल. और ये जो पानी दिख रहा है, इसमें पानी क्या है बच्चों? बोलिए. दिस इज प्लाज्मा. और बच्चों, ये जो दाल है, देखिए रेड कलर का दाल, आप इसको बोल सकते हो आरबीसी. वैसे रेड कलर तो नहीं है, ऑरेंज जैसा है, तो ये है आरबीसी. ठीक है बच्चों, अब इसमें से मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा चाय पत्ती. ठीक है बच्चों, आप इसको बोल सकते हो ब्लड प्लेटलेट्स. क्या बोल सकते हो बच्चों? ब्लड प्लेटलेट्स. इसके अलावा बच्चों ब्लड में, तो ये है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड कंपोज्ड होता है. समझ में आ गया बच्चों? तो ये पानी है प्लाज्मा, व्हाइट कलर का दाल है व्हाइट ब्लड सेल, रेड कलर का दाल है रेड ब्लड सेल, ये जो ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है बच्चों, आगे बढ़े. So what is plasma? It is a fluidic matrix in which blood cells are suspended. It transports food, CO2, nitrogenous waste in the dissolved form. Food, CO2 and nitrogenous waste gets dissolved in plasma. ओके बच्चों, तो ये जो तीन चीज मैंने बताया, फूड, CO2 और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्लाज्मा में घुल जाता है और वो ब्लड के साथ बहता रहता है. ठीक है बच्चों, और जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में नहीं घुलता है. ऑक्सीजन गोज इनटू द हीमोग्लोबिन एंड वेरेवर हीमोग्लोबिन गोज, इट गोज अलोंग विद दैट. ओके बच्चों, आया समझ में भाई? सो ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय हीमोग्लोबिन and rest of the things, digested food, carbon dioxide, nitrogenous waste gets dissolved inside plasma and flow along with the blood stream. ठीक है बच्चों. now blood cells, RBC, red blood corpuscle cells बोलते हैं बच्चों, white blood cells and blood platelets. ये तीन चीज है. RBC ब्लड लुक्स, ये तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है. आगे बढ़ते हैं. WBC, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. तो बच्चों हमारे बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल चला जाए, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस चला जाए, सो दिस व्हाइट ब्लड सेल fight against those viruses and bacteria and kill them. Okay, and hence protect us from diseases, और हम लोगों को बीमारी से बचा के रखता है. so they are defense mechanism of our body. तो ये सब नई चीज नहीं है आपके लिए, आप पहले भी पढ़े हो. WBC, white blood cell. Okay, the function of WBC, it protect the blood from infection, it manufactures antibodies which is responsible for immunity. प्लेटलेट्स का फंक्शन आपको मालूम है बच्चों? एक्चुअली ब्लड प्लेटलेट परफॉर्म ब्लड कोआगुलेशन, ओके, एंड हेंस सील्स द लीक, एंड हेंस सील्स द लीक at the place of injury, at the place of injury, and due to this bleeding is prevented. okay, मतलब ये है बच्चों, अगर मान लीजिए this is the skin. ओके, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है बच्चों, तो मैं आपको रफ करके दिखाता हूं. देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहां पे आपको चोट लग जाता है, ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक आपको चोट लग गया, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा. ध्यान से देखिए, ब्लड विल ऊज आउट. ओके, यहां ये इंजरी है, ये इसको मैं क्या बोलूंगा? इंजरी. ठीक है बच्चों. सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, यहाँ का जो ब्लड है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है बच्चों. ब्लड बिकम्स थिक. तो यहाँ का जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? थिक. याद रखिए. सो
ब्लड बिकम्स थिक। ये थिक जो होता है इसी को बोलते हैं बच्चों बायोलॉजी में कोआगुलेशन, कोआगुलेशन। एंड दिस थिक ब्लड सील्स दिस लीक। तो यहाँ जो लीक हुआ होता है उसको ये थिक ब्लड सील कर देता है। तो क्या होगा बच्चों, बंद हो जाएगा ना। तो ऐसे करके वंस द लीक इज सील्ड फर्दर ब्लीडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस एंड द पर्सन इज सेव्ड फ्रॉम ब्लीडिंग। ठीक है बच्चों, तो सिंपल वर्ड ये बोलिए, आपका जो प्लेटलेट है, क्या है बच्चों, प्लेटलेट जहां चोट लगा है वहां का ब्लड को गाढ़ा कर देता है। एंड व्हेन द ब्लड बिकम्स थिक दैट लीक गेट्स सील्ड एंड एज अ रिजल्ट फर्दर ब्लीडिंग इज प्रिवेंटेड। सिंपल समझ में आ गया बच्चों। तो ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा। और ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो जहां पे लीक हो रहा है बच्चों, ब्लड लीक हो रहा है, वो एरिया हो जाता है सील। क्या हो जाता है बच्चों, सील। तो याद क्लियर है। तो यानी रेड ब्लड सेल हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, व्हाइट ब्लड सेल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी एंड ब्लड प्लेटलेट्स helps in thickening the blood and that is called coagulation and what seals the leak at the place of injury। तो ऐसे करके ये तीन मेजर कंपोनेंट है बच्चों ब्लड का, और ये तीनों कंपोनेंट प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, यानी CO2 जो है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। CO2 के लिए कोई भी पर्टिकुलर सेल नहीं है, ऑक्सीजन के लिए है RBC, CO2 के लिए नहीं है। CO2 is transported in dissolved form inside plasma। तो प्लाज्मा में बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, डाइजेस्टेड फूड भी मिलेगा, हार्मोन्स भी मिलेगा, एंजाइम्स भी मिलेगा। ओके, बहुत सारा चीज प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। जैसे नदी का पानी होता है बच्चों, नदी का पानी में क्या होता है बताइए, बहुत सारा चीज घुला हुआ होता है ना। उसमें कीचड़ होता है, मिट्टी होता है, डर्ट होता है, सारा पोल्यूशन होता है, डब्बा बोतल सब उसमें होते हैं। तो वैसे प्लाज्मा में भी डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब कुछ उसके अंदर घुला हुआ होता है। बस ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है। ऑक्सीजन किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब किसी के बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो क्या होगा बताइए। What happens when hemoglobin is less in any body? So definitely when hemoglobin is less, what happens बच्चों, then the transportation of oxygen will not take place efficiently. Am I right? And when the transportation of oxygen does not take place efficiently, क्या होगा, the body tissues will not get oxygen. And when the body tissue does not get oxygen, then the proper respiration will not take place. You know that respiration requires oxygen, and due to less respiration, energy will not be released. Sufficient energy will not be released. Okay? And as a result, so when the energy is not released, what happens? When the sufficient energy is not released, person becomes weak, lethargic. Okay? सुस्त खोर हो जाएगा और पेल हो जाएगा, बॉडी में पीलापन जैसे हो जाएगा, वीक हो जाएगा और लेथार्जिक मतलब जैसे कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, सुस्ती लग रहा है, ये सब हो जाएगा। इसीलिए बच्चों बॉडी में हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे से वीडियो में हमने क्या क्या जाना आज बताइए। कम ऑन। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इज इट क्लियर? So in the transportation system, we have seen about circulatory system consists of heart, blood vessels, and blood. We have seen about blood. Blood is a connective tissues, okay? And blood में होती है plasma. Plasma is a liquid substance, liquid matrix in which RBC, WBC, and platelets are suspended.
You came to know what is the function of WBC, RBC and platelets. उसके बाद आपने ये सीखा how the oxygen and CO2 are transported. What happens when there is a deficiency of hemoglobin in our body. तो बच्चों समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड. तो फाइनल रिवीजन कर लेते हैं. तो बताइए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनियस वेस्ट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा. वेरी गुड. इम्यून सिस्टम कौन बढ़ाता है? WBC. ओके, विच कंपोनेंट हेल्प्स इन सीलिंग द लीक फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ इंजरी? दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स. तो ऐसे करके हर कंपोनेंट का बच्चों एक एक काम होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी अबाउट हार्ट. ओके. Okay, my dear students, that's all for today's class. Enjoy, study and rock. Okay.